آج تم کہتے ہو کہ ان میں لڑائیاں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم لڑتے تھے، اور ان کے تعصبات کی جو چنگاریاں تھی وہ بجھی نہیں تھی بلکہ دبی تھی، اور حضور کی وفات کے بعد وہی پھر سلگنے لگی۔ تم امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم کے محترم سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں جو اساتذہ ہیں ان کو مشورہ دیں، میٹنگ کریں کہ وہ طلبہ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں جو صحابہ سے متعلق عقیدوں کی باتیں ہیں، اور منع کریں کہ ایسے شخص کا کوئی بیان نہ سنا جائے جو ضال ہے اور مضل ہے۔ صحابہ سے کون دشمنی رکھے گا؟ صحابہ کا کون منافق کہے گا؟ جو خود صدیق ہوگا، جو خود منافق ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت الفتن او البدع او سب اصحابی فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوِ الْبِدَعُ، جب فتنے رونما ہونے لگیں یا بدعتیں ظاہر ہونے لگیں۔ فتنے سے مراد کوئی عمل کا فتنہ ہو، فتنے سے مراد بد اخلاقی کا فتنہ ہو، بد کرداری کا فتنہ ہو، بد نظری کا فتنہ ہو، برے معاملات کا فتنہ ہو، اور غلط تعلقات کا فتنہ ہو۔ فتنہ کوئی سا بھی ہو، لیکن چونکہ دین کے جو پہلو ہیں ان میں سب سے نمایاں اور سب سے اولی پہلو ایمان اور عقیدے کا پہلو ہے، اور جب عقیدے میں فتنہ آ جائے، بدعتیں رواج پانے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اور آج جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ جو فتنے ہیں نا، ان کو ہم کون سا فتنہ کہیں گے؟ دجالی اور طاغوتی فتنہ۔ شیطان نے کہا تھا نا اللہ میاں سے، جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اس سے کہا گیا تھا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن آپ ہم کو مہلت دیجئے، زندگی دیجئے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بندوں میں کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ اولاد آدم جنت میں جائے اور اولاد ابلیس جہنم میں جائے، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ اور اللہ سے اس وقت اس نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ تیرے بندوں کے سامنے سے بھی آئیں گے، پیچھے سے بھی آئیں گے، دائیں سے بھی آئیں گے، بائیں سے بھی آئیں گے، اور تیرے بندوں کو ہم کوئی کام کا نہیں چھوڑیں گے، کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ بعد والے اپنے پہلے والوں کو گالیاں نہ بکنے لگے۔ آج گالیاں ہی تو بکی جا رہی ہیں۔ شروعات کی تھی حضرت معاویہ سے، اور ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں جلسے نہ کرو، محرم کے شہداء، تو
तुमसे पूछ करके हमने जलसे शुरू किए थे। बेईमान, बेदीन, सहाबा को मुनाफिक कहने वाले, सहाबा को जिंदीक कहने वाले, कुरान की जुबान में अगर हम कहें अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यशऊरून, ये खुद बेवकूफ हैं। जब सहाबा को लोगों ने कहा तो अल्लाह ने वैसे ही जवाब दिया। हमने इससे पहले भी ये बात कही थी, जो सहाबा को कहोगे अल्लाह से वैसे ही सुनोगे। उन्होंने सहाबे इकराम के मौत का इंतजार किया और ये कहा नतरब्बसु बिकुम दवाइर, अल्लाह ने जवाब दिया अलैहिम दाइरतुस्सौ। जब उन्होंने कहा लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम जलील कर देंगे सहाबा को। किनको? जो रसूलुल्लाह के पास रहते हैं। झूठी झूठी तावीलें करते हो लोगों को गुमराह करने के लिए। हम शियों को नहीं कह रहे हैं, हम उस शख्स को कह रहे हैं कि जो आज के वक्त में लखनऊ शहर के अंदर से एक फितना उठा है, बदनाम जमाना फित्तीन, कई सालों से यही चल रहा है सिलसिला। हमने तो देखना ही छोड़ दिया है। कल किसी ने कहा कि लो देखो तो क्या अफवाह बक रहा है, तो मैंने सुना हजरत सिद्दीक अकबर का किरदार अदा करो। उन्होंने अली को, उन्होंने उमर को डांटा, फटकारा। हजरत उमर का तो नाम लिया और हजरत अली का नाम नहीं लिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक क़िताल मुर्तद्दीन के लिए आमादा हुए, खड़े हुए और लोगों में ये कहा कि देखो हमको क़िताल करना है, तो जिस तरह हजरत उमर ने उनको मशवरा दिया कि अभी वक्त नहीं है क़िताल का, इसी तरीके से हजरत अली ने भी मशवरा दिया। तुम एक चीज को मानते हो, दूसरी चीज को छोड़ देते हो। तुम कहते हो कि सहाबे इकराम के खिलाफ हजरत अली मुर्तजा खड़े हुए। तुम्हें नहीं मालूम कि हजरत अली को हजरत शेखैन से, अबू बकर और उमर से कितनी मोहब्बत थी। वो हदीस पढ़िए, खैरुल उम्मति बाद नबिय्यिहा अबू बकर व उमर। उम्मत में सबसे ज्यादा अच्छे, बेहतरीन, अफजल तरीन कौन है? अबू बकर सुम्मा उमर, फिर उमर इब्न खत्ताब है। हमको इत्तिहाद की दावत देते हो, मशवरे देते हो, तुम्हारी ये हैसियत, और तुम ये कहते हो कि हजरत अली में और दूसरे सहाबा में इख्तिलाफ था। तरावी को किसने शुरू किया था? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत फारूक आजम ने बाजमाअत तरावी पूरे रमजान। हजरत अली तो उस वक्त बड़े बहादुर थे, रोक देते। उनके सामने अगर ये बिदअत उमरी हो रही थी, मना कर देते, आ जाते सामने। कौन हजरत अली, जिनको हम कहते हैं हैदर कर्रार, असदुल्लाहिल जब्बार, कोई शक नहीं है, जिनके बारे में तुम कहते हो शाह मर्दा। तुम ये कहते हो कि वो ऐसे थे कि जिनको तुम जुल्फ़ुखार कहते हो। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़ुखार। तुम तो हजरत अली का नाम लेकर के शिर्क करते हो। हम क्या कह रहे हैं सुनिएगा गौर से। हजरत फारूक आजम ने तरावी की नमाज शुरू की। हजरत अली ने देखा कि मस्जिदों में तो रोशनियां हो रही हैं, और क्या दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाहुम्मा नव्विर कब्र उमर कमा नव्वर मसाजिदना। ए अल्लाह, उमर की कब्र को मुनव्वर कर दे जैसे उसने हमारी मस्जिदों को नूरानी बनाया है। आज तुम कहते हो कि उनमें लड़ाइयां थी।
बनु उमय्या और बनु हाशिम लड़ते थे और उनके तासुबात की जो चिंगारियां थी वो बुझी नहीं थी बल्कि दबी थी, और हुजूर की वफात के बाद वही फिर सुलगने लगी। तुम उम्मत को गुमराह कर रहे हो। हम मदरसे के जिम्मेदारों से कहते हैं, हम दारुल उलूम के मोहतमीम से कहते हैं, हम दारुल उलूम नज़वतुल उलमा के जिम्मेदारों से कहते हैं कि अपने मदरसे में जो असातिज़ा हैं उनको मशवरा दें, मीटिंग करें कि वो तलबा के सामने ये चीज़ें बयान करें जो सहाबा से मुताल्लिक़ अक़ीदों की बातें हैं, और मना करें कि ऐसे शख्स का कोई बयान न सुना जाए जो ज़ाल है और मुज़िल है। सहाबा से कौन दुश्मनी रखेगा? सहाबा का कौन मुनाफिक कहेगा? जो खुद सिंदीक होगा, जो खुद मुनाफिक होगा। जितने भी मदरसे के लोग हैं इन बातों पर आकर के लच्छेदार बातों में उनसे मरूब होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने आपको बसीरत दी है, अल्लाह ने आपको बसारत दी है, अल्लाह ने आपको फरासत दी है, अल्लाह ने आपको रोशनी दी है, अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। आप अपनी आंखों से देखें वो कुरान की आयत की तफसीर और हदीस जिसमें तलबीस की जा रही है, जिसमें दज्ल फरेब किया जा रहा है, और जिसके जरिए से गलत सलत बयानात पेश करके ये अब्दुल्ला इब्न सबा ने जो विरासत छोड़ी थी ना, वो सब है ये अब्दुल्ला इब्न सबा ने जो इस्लाम के खिलाफ। लेकिन याद रखिए तुम कहते कहते मर जाओगे, और ये अल्लाह का वादा है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। लोग चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंक से अल्लाह के चराग को बुझा दे, लेकिन अल्लाह अपने नूर हिदायत को पूरा करके रहेगा, और जितने नाफरमान हैं उनको कितना ही बुरा लगे। ये बात मैंने ज़रूरी समझ करके मैं मशवरा दूंगा दारुल उलूम के जिम्मेदारों को, मैं मशवरा दूंगा मदरसे शाही के जिम्मेदार को, मैं बात करूंगा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर वालों से, मैं बात करूंगा गुजरात के मदारिस वालों से, मैं बात करूंगा दारुल उलूम नज़वतुल उलमा के जिम्मेदारों से। आप कहाँ हैं? आपके सामने वो हदीस नहीं है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही इन लम यस्तति' फबिलिसानिही व इन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ु मिनल ईमान। क्या इतना भी ईमान नहीं बचा है? इतना भी ईमान नहीं बचा है? इतनी बेगैरती है? अगर हम बोल देंगे हमारी दुकानें जल जाएंगी, जहां हमारी रोटियां सिकती हैं, हमारे दौरे बंद हो जाएंगे, हम मसलिहत की चादर ओढ़े हुए, हटाओ मसलिहत का ये पर्दा, और साहबे इकराम के ऊपर बरसने वाले जो एतराजात हैं उनका जवाब दो, वरना अल्लाह के वहां तुम्हें मुंह दिखाना होगा। अल्लाह नहीं बख्शेगा जब तुम ये कहोगे कि हम बुखारी पढ़ाते थे, हम मुस्लिम पढ़ाते थे, हम तिरमिज़ी पढ़ाते, अबू दाऊद पढ़ाते थे। पढ़ाते होगे तुम। जब ये कहा जा रहा था कि मुआविया पर लानत, नाऊज़ु बिल्लाह, शेखैन पर लानत, तो तुम्हारा ईमान कहां गया था? तुम कहां मर गए थे? इतनी ज्यादा बेहिसी, इतनी ज्यादा गफलत, इस चीज से हमको बेदार होना पड़ेगा। हम फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत के इस स्टेज से, इस प्लेटफार्म से। पूरे लखनऊ को मेरा ये पैगाम है, पूरे हिंदुस्तान को मेरा ये पैगाम है, जहां जहां मदारिस हैं उनको हमें मेरा ये पैगाम है कि खड़े हो और इस फितने की सरकोबी करो कि जैसे सिद्दीक़ अकबर ने सरकोबी की थी। तुम हमको मशवरा दोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम जहां पढ़ाते थे वहां तुमको कबूल नहीं किया गया, वहां से निकाल दिया गया। तुमने हजरत मौलाना राबे साहब, जिन्होंने तुमको पाला पोसा था, जिनके ढेर सारे तुम्हारे ऊपर एहसानात हैं, तुम कमीने न होते तो हजरत मौलाना राबे साहब को बुरा ना कहते। क्या कहा है अल्लामा आलूसी ने? इज़ा
احسنت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا. اگر کسی شریف انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں تو وہ شریف انسان جو ہے وہ تمہارا غلام ہو جاتا, اور کسی کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو کمینہ مردود ہوگا, سرکش ہوگا. ہم نہیں ڈرتے ہیں اس بات سے. میرے والد ہوتے تو اس سے بھی زیادہ سخت کہتے. اتنی سخت باتیں, کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جائزہ لو, جاگو مسلمانوں, بیدار ہو مسلمانوں. ہمارے جیتے جی صحابہ کرام کو, پھر کہاں ہمارا ایمان رہے گا قرآن پر اور حدیث پر؟ جذبات نہیں ہیں, یہ حقیقت بیانی ہے.